Namaste, namaskaram to thank you so much, Honorable Governor, for accepting our invite and being here with us today. To all our young people who are watching us live, joining us live, thank you so much for being here. Before proceeding for the event, we would start with and play the national anthem and start with जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Welcome to the Youth Ki Baat e-dialogue. Today, we have a very special guest amidst us, who is the sitting governor, born pre-independence, and happens to be our 93rd guest during the past 143 days. I thank the Honorable Governor of Himachal Pradesh, Shri Banderu Dattatreya ji, on behalf of the entire team of Youth of India Foundation and Vivekananda Global Foundation, for taking his time from the busy schedule to address and speak with the youth of India today. We would also pour our congratulations to the governor for completing one successful year in the office as the governor of Himachal Pradesh. Thank you, Governor, for everything that you do and for joining us on this special occasion. I thank each one of you who are joining us live in this Youth Ki Baat. Honorable Governor of Himachal Pradesh, Shri Banderu Dattatreya ji, assumed his office on September 11, 2019. Shri Banderu ji started his journey as a pracharak of Rashtriya Swayamsevak Sangh in 1968, and during emergency in 1975, served as a joint convener of Loka Sangharsha Samiti. Shri Banderu ji then started his political journey in the year of 1980 and was elected as a member of parliament in the year 1991. I think the year might be, some of us were not even born. He has also served in various capacities as the National Secretary, State President of Andhra Pradesh, National Executive Members, and many more. As a politician, he has contributed far and beyond, strengthening the organization selflessly. More than that, Shri Banderu has been an exceptional parliamentarian, serving for 4 terms as the chairperson and on the various capacities of a chairperson of the Parliamentary Committee on Welfare of Other Backward Classes, member of Standing Committee on Finance, chairperson, Joint Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament, Public Accounts Committee member, Standing Committee on Railways, and many more. An avid player in carom board, table tennis, and cricket. He is also a passionate reader and tunes into different genres of music, including mythological songs. Thank you so much, Governor, once again for being here with us to share your keynote address
on the role of youth in nation building by 2022, a vision towards new India. Uh, Today, our dialogue and discussion happens to be on a very interesting topic. What would be the role of youth in the nation building towards 2022? As it is envisioned that the year 2022 would be a year of celebration, or maybe from the freedom fighting that we of 75 years as a whole together, it is indeed a privilege to understand how would young people, when we talk about a young nation that is India, what would be the role of young people together to carry forward the baton as sought by? How would young people in together create aspects that would lead us towards a Vishwa Guru as well? And I think it is very important, as we are going to discuss today, that the Prime Minister of India has launched the Prime Minister Swanidhi program, and which happens to be by and large something that is mesmerizing to me as well. And I remember very rightly while I was there in the United Nations General Assembly last year during the Youth Climate Action Summit as one of the 100 youth activists from across the globe, we proposed that alternatives to single-use plastic would be this mud glass or the kulhar that we said, and these are made by the people in the villages of creating sustainable products which are the alternatives to single-use plastic. So when we talk about 2022, what are the and if we look back in 1947, that independence was from slavery, that independence was for self-esteem, that independence was for oneself. But now as we move towards 2022, celebrating the 75 years of independence from the British regime, what would be the independence be look like? Would it be independence from single-use plastic? Would it be independence from dirt that is there around us? Would it be independence from different ideologies that we see around? To understand more, now I would really request our Honorable Governor to give his keynote address and engage with young people of India today who are joining us on the role of youth in nation building by 2022. Honorable Governor, over to you, please. विवेकानंदा ग्लोबल फाउंडेशन के जो है फाउंडर श्री शैलेश सिंघाल जी और अनदर फाउंडर मेंबर ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन श्री शंकर जी और प्यारे विद्यार्थियों, ये विवेकानंदा ग्लोबल फाउंडेशन ने, मैं पहले उनको बधाई देता हूं जिन्होंने इस यूथ की बात की डायलॉग आयोजन किया है। फाउंडेशन का यह प्रयास निश्चित तौर पर सुदृढ़, सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए नए विचारों का संवाद बनेगा। मानव सभ्यता सदियों से विकसित हुई है। हर पीढ़ी की अपनी सोच और विचार होता है जो समाज के विकास की दिशा में योगदान देते हैं। आज का युवा प्रतिभा और क्षमता वाला है। वह सीखने और नई चीजों को तलाशने के लिए उत्सुक है। युवा एक राष्ट्र के भावना ब्लॉक है। अधिक मजबूत युवा ही अधिक विकसित राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका केंद्रीय स्थान पर होती है। जो देश सही दिशा में अपने युवकों का उपयोग करते हैं,
वे अधिक विकसित होते हैं। युवाओं के मन की ऊर्जा और चमक एक राष्ट्र के लिए मशाल वाहक रूप में कार्य करती है। इसके विपरीत देश जो युवा को जीवन के हर विभाग में पीछे कर देता है, वे विफल होते हैं। दुनिया के लगभग 27% आबादी युवा है। इस तरह जनसंख्या का एक बड़ा भाग राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि युवाओं के विचारों और राय की स्वतंत्रता का व्यायाम हो। उन्हें अपने विचारों को साझा करने और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए सही मंच मिलना चाहिए। 3 प्रमुख तत्व है राष्ट्र की प्रगति दिशा में योगदान देते हैं। वो पहली है शिक्षा, और दूसरा रोजगार, तीसरा सशक्तिकरण। एक राष्ट्र एक स्थिर गति से विकसित होता है जब देश के युवा शिक्षित होते हैं और उनकी शिक्षा को सही उपयोग में रख जाता है। भारत एक युवा राष्ट्र है। यहाँ की 62.5% जनसंख्या 15 से लेकर 19 वर्ष की आयु में जब 2036 में ये प्रतिशत जो है 65% बनेगा। लेकिन अगर हम दूसरे देशों का अगर हम उनकी औसत आयु हम देखेंगे तो चीन का जो है 37 ईयर्स होगा और यूएसए का भी 37 ईयर्स होगा, और हमारे वेस्ट यूरोप वाले जो देश है वो 45 ईयर्स रहेंगे, जापान वाले 49 होंगे। हमारा इंडिया जो देश है भारत, ये 28वें वर्ष वाले होंगे। यानी इंडिया इज एन यंग नेशन। भारत जो है एक युवा राष्ट्र है। ये जो है हमको बहुत लाभान्वित कर सकती है। इसलिए उनके जीवन का प्रभार लेने के लिए सशक्त बनाना जरूरी है। यह आवश्यक है युवाओं की क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसर मुहैया कराए, वे जीवन में किसी गलत रास्ते पर न जा सके। यह समय है जब सार्वभौमिक छवि के साथ एक मजबूत राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्धता की जरूरत है, और वह तभी संभव है जब इसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कोई भी राष्ट्र अपनी आकांक्षाओं और सपनों को युवकों के समग्र और सशक्त योगदान के साथ प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास कई क्रांतियों और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, प्रशासनिक परिवर्तनों के साथ साथ बेहतर मानवीय जीवन के लिए युवकों के आविष्कार एवं
प्रयास कवन बने हैं। राष्ट्र जो है निर्माण, राष्ट्र का जो निर्माण है, इसका जो शब्द जो है ये सॉवरेन स्टेट है, लेकिन देश में कई अन्य जो है भावनात्मक जो है ऐसी अदृश्य धारणाएं। राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो राज्यों, उनकी सरकारों को अपने अधिकार को वैध बनाती है, राष्ट्रीय पहचान सुनिश्चित करती है। ये का भारत जो है एक प्राचीन राष्ट्र है और भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। भारत जो है हमारा नेशनल हेरिटेज, बहुत हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने हजारों वर्ष उन्होंने त्याग तपस्या से जो है इस देश का निर्माण किया है। ये राष्ट्र का जो है इतिहास भी बहुत बड़ी है और यहाँ के महापुरुष बहुत से समाज को एक सुव्यवस्थित समाज रखने के लिए और वैसे ही हमारे नैतिक मूल्यों को, हमारे संस्कृति को, गुलामी में जो भाई फॉरेनर्स रहने के बाद भी हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं पा सके, लेकिन फिर भी हम लोग सांस्कृतिक रूप से उच्च थे। तो इसलिए हमारा राष्ट्र जो है दुनिया के राष्ट्रों से एक अलग पहचान है। हम इसको नहीं भूलना चाहिए। केवल 1947 में ही राष्ट्र बना है, ऐसा कुछ लोगों का धारणा भी होता है। हमारा राष्ट्र जो है सदियों से बना हुआ है। तो इसलिए इस राष्ट्र का निर्माण और इसका कभी भी हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक इस मूल्यों को हम लोग काफी बढ़ाने का आवश्यकता भी है। इसमें युवा जो है एक बहुत महत्व का जो है रोल प्ले कर सकते हैं। अभी निस्संदेह से युवाओं के लिए दो महत्व बातें हैं। एक है शारीरिक दृढ़ता, दूसरा है मानसिक दृढ़ता। ये दो चीज जो है युवाओं को बहुत जरूरत है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया का जो है उन्होंने एक देश में पूरा युवाओं को, युवतियों को फिट करने के लिए उन्हें एक कार्यक्रम रचना भी किया है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आई वांट मेन मसल्स ऑफ आयरन, स्टील्स ऑफ नर्व्स एंड जिजियांटिक हार्ट। ऐसे लोग जो है देश के निर्माण के लिए जरूरत है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो इसलिए हमारी युवाओं के शारीरिक दृढ़ता और मानसिक दृढ़ता, इसको काफी हम लोग और वैसे ही मनोवैज्ञानिक शक्तियों के आधार पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी और विश्वसनीय भूमिका निभा सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे बेंजामिन डिज़राइल उन्होंने कहा था, यूथ ऑफ ए नेशन आर ट्रस्टीज ऑफ पोस्टेरिटी। वैसे इस युवा जो है काफी रोल प्ले कर सकता है और उनका जो शक्ति रहता है और देश की जो है वो ऊर्जा बनती है
और अपना देश का आइडेंटिटी भी होती है, लेकिन विश्व में ले जाना चाहिए। आपने जो कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक उन्होंने जो है एक नीति बना के देश का निर्माण में युवाओं की भागीदारी कैसा होगी, इसमें जो है हमको बहुत बहुत हमारा प्रमुख विषय है। हम इसीलिए प्रधानमंत्री पहली बार बनने के बाद 2014 में उन्होंने नेशनल यूथ पॉलिसी बनाया। नेशनल यूथ पॉलिसी में जो है एक प्रमुख विषय है, पहला विषय है वैश्वीकरण, दूसरा विषय है सूचना संचार, और तीसरा विषय है प्रौद्योगिक क्रांति। ये 3 विषयों को विश्वव्यापी परिस्थितियों के तहत अपनाया गया था। तो ये जो 3 बातें जो हैं, हम जिस राष्ट्रीय नीति में जो बना रखा है उसके अनुसार पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के सशक्त बनना चाहिए, और उनके माध्यम से भारत राष्ट्र को समुदाय में अपने सही स्थान खोजने सक्षम बनना है। भारत सरकार का मानना है युवाओं को एक्टिव ड्राइवर्स होना चाहिए, न कि केवल विकास के पैसिव रिसिपिएंट नहीं बनना चाहिए। वैसे ही जो है हमारा बहुत बड़ा हमारा राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा भागीदारी हो सकता है, जैसा आपने कहा था 2022। लेकिन जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा संपत्ति बनेगा। डेमोक्रेटिक डिविडेंड जो है दूसरे देशों में, हमारा देशों में, मैंने पहले ही कहा था, भारत एक युवा राष्ट्र होगा। तो इसके लिए जो है हम लोग इस जनसंख्या के हमारा जो गुणवत्ता है, क्वालिटी जो है, इसका टेक्नोलॉजी के तरह से, और हमारा कौशल विकास जो है इसकी शिक्षा देने में और विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास करने में सक्षम होगा। और भविष्य की राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें जीवन पर्यंत, मैंने जो स्किल कहा था, स्किल, रीस्किल और अपस्किल, स्किल इसलिए ज़रूरत है, ये दुनिया जो है अभी जो वर्ल्ड इज गोइंग टू बी चेंजिंग इन द डिफरेंट मोड्स and in the different directions. So to take that opportunities, we have to mold our life according to that style. Otherwise, we will be updated. Many new jobs will come, and by 1930, many jobs may be disappear. New jobs will come. For that, youth or even the old people, they need to be reskilled. Unless until the reskilling is necessary, even those who are employed people, those who are unemployed is different. Those who are employed people, those who are professionals, they should compete with the world standards. For that, they should learn new mode of ways and new mode of approaches and new mode of techniques and new mode of technology. इसके माध्यम से जो है
हम विश्व में हम बराबर जो है compete कर सकते हैं। और ये भी एक है, ये तो कठिन की बात है, मुश्किल नहीं है, कठिन है। रास्ता जो है थोड़ा कठिन है, लेकिन हमारा प्रयास तेज ही बनना चाहिए। जितना हमारा प्रयास तेज रहेंगे उतना हमारा काफ़ी रहेगा। अब ये तेजी से बदलते विश्व में भविष्य के चुनौतियों का आकलन कर पाना अगर अस्वाभाविक नहीं तो कठिन तो है ही है। किसने सोचा था कि कोरोना की महामारी पूरे दुनिया की गति को रोक देगी और विकास, कामकाज, नौकरी, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये वर्तमान संदर्भ को पूरी तरह बदल देगी। ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन चैलेंज में भी अपॉर्चुनिटीज बनाना चाहिए। चैलेंजेस में जब अपॉर्चुनिटीज के रूप में उसको कन्वर्ट करेंगे तभी जो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये परिस्थितियों से डरने का नहीं है, ये परिस्थितियों से हम चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और उसके अनुरूप हमारे जीवन शैली और हमारे व्यवहार उस तरह मोड़ लेना चाहिए। तो इसलिए आपने कहा था कि मोदी जी ने जो लक्ष्य लगाया, उन्होंने ये स्किलिंग में जो है और एक महत्व विषय लगाया कि आप केवल सरकार के नौकरी लेने के लिए या किसी नौकरी जाने के लिए नहीं, आप जो है अच्छे स्किल लेके, अच्छे पढ़ के आप जो है एक अच्छा जो है 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को आप रोजगार दें, एंटरप्रेन्योर बने। जब एंटरप्रेन्योर बनेंगे तब जो है आपका और मजबूत होगा। तो इसलिए हमारा युवा जो का सोच जो है केवल सरकार की नौकरी और दूसरों के ऊपर हम आधारित ऐसे नहीं होने चाहिए और इसमें नए इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेशन इज वेरी एसेंशियल। इनोवेशन नहीं रहेगा तो जो है उसको आगे चलने में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आज के युवा पीढ़ी, हमारे भारत के युवा पीढ़ी बहुत इनोवेटिव है। हमारे IITs, हमारे IIMs और ILMs ये सभी जो है काफ़ी इनोवेटिव बच्चों को वहाँ से जो है विज्ञान के रूप में निकल पा रहे हैं। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय पर जोर दिया है। इसके और भी हम इस बीच में मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में कारगर सिद्ध होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इसमें शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान कमियों को दूर करने के प्रावधान किए गए। वह 21वीं सदी के बदलते भारत की आंतरिक वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की तैयारी भी झलकती है। तो इसलिए ये नया शिक्षा नीति जो है ये भी जो है बहुत परिवर्तन लाने का मोड़ में लाया है और ऐसे विषयों के ऊपर
अंत में इतना ही कहूँगा मैं, जो यूथ है, युवा है, युवाओं को बहुत ही ज़रूरत है वो देशभक्ति होना चाहिए। देशभक्ति, पैट्रियटिज्म, ये मेरा मातृभूमि है और ये मेरा समाज है, और जिसमें जो गरीब है, पिछड़े हुए हैं, और ऐसे लोगों को भी सेवा करेंगे, ये भावना भी निर्माण होना चाहिए। हम हमारे परिवार नहीं, हम और हमारे परिवार नहीं, हम हमारा देश, मेरे देश के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति मैं क्या कर सकता हूँ, पुरानी सोच जो है मुझे क्या दिया है, ये नहीं मैंने क्या दिया हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, इस विषय को जो है हम देशभक्ति को बहुत जो है जगाना पड़ेगा। केवल पाकिस्तान, चाइना या कोई देश आक्रमण करने के लिए आते हैं, तब देश पूरा इकट्ठा होना बहुत अच्छी चीज़ है, भावना है, लेकिन एक सकारात्मक रूप में, एक पॉजिटिव रूप में, पॉजिटिव रूप में इसको बदलाव देना चाहिए। तो इसके लिए हमारा बहुत ही जो है चरित्र निर्माण बहुत ही आवश्यक है। कितना भी बड़ा औद्योगिक हो, कितना बड़ा प्रोफेशनल हो, कितना बड़ा विद्वान हो, लेकिन वो चरित्रवान नहीं है तो उसका इज्जत नहीं रहेगा, उसका जो है महत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग इज ओनली नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग इज अ नेशन बिल्डिंग। तो इस कैरेक्टर को हम लोगों ने बहुत ही महत्व देना चाहिए। इसके लिए हमारे जितने महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, राणा प्रताप, महात्मा गांधी, ऐसे महापुरुष जो है उन लोगों के जीवन से प्रेरणा लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ना चाहिए। मुझे विश्वास है जो आज स्वच्छ भारत है, युवा इसमें बहुत भाग लेना चाहिए, और स्वस्थ भारत है, इसमें भी युवा भाग लेना चाहिए। और वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही नए इनिशिएटिव्स लिए। ये नए इनिशिएटिव्स को युवा जो है ग्रामीण प्रांतों तक, ग्रामीण इलाकों तक इसको अमल करने में भी भागीदारी हो सकते हैं। अपना खुद का व्यवसाय कर लेना चाहिए, साथ ही साथ समाज की जो है निर्माण में भाग लेना चाहिए, तभी जो है नेशन बिल्डिंग होगा। इस संदर्भ में आपकी सफलता बहुत ज़रूरत है। जितने सफल रहेंगे उतने जो है विजय प्राप्त करेंगे। सफल व्यक्ति होना चाहिए, सफलता प्राप्त करना चाहिए। मुझे एक विषय याद आ रहा है, सिर्फ जिंदगी न गुजरे, जियो। सिर्फ जिंदगी न गुजरे, जियो। डू मोर देन एग्जिट, लिव। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। डू मोर देन टच, फील। और सिर्फ देखी नहीं, गौर करें। डू मोर लुक, दैट इज ऑब्जर्वेशन। पढ़े नहीं,
सिर्फ पढ़े नहीं जी, जीवन में उतारे, जीवन में उतारे। डू मोर द रीड एंड ऑब्जर्व और द डाइजेस्ट। सिर्फ सुने नहीं, ध्यान से सुने। डू मोर हियर, लिसन। सिर्फ ध्यान से सुनो, सुनो, सुने। सिर्फ ध्यान से ना सुने, समझो, समझो। डू मोर देन लिसन एंड नॉट ओनली एग्जिट। तो ये सफलता जो है जीवन में होना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों ने आज महत्वाकांक्षी के साथ अपना विवेकानंदा जो फाउंडेशन, विवेकानंदा ग्लोबल फाउंडेशन, आप लोगों ने इस विषय पर, मुझे विश्वास है, देश जिस डायरेक्शन में अभी चल रही है, इस डायरेक्शन में, इस दिशा में और आगे बढ़ेगी। और उधर 2020 ही नहीं, हम 2030 तक भी जो है काफ़ी नए इनिशिएटिव्स में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखूँगा। और आप इस विषय आज ही डला के रूप में जो करके आप लोगों ने काफ़ी देश के हित के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए आप लोगों ने जो एक नया काम करने का, प्रचार करने का जो विषय किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों को प्रत्येक करके हमारे फाउंडेशन के हमारे अध्यक्ष शैलेश सिंघल जी और विवेकानंद ग्लोबल फाउंडेशन शंकर जी को मैं बधाई देते हुए मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल गवर्नर जी, कि जिस तरह आपने हम सबके समक्ष ये इस विषय को रखा, मुझे लगता है हम सब के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। मुझे एक बहुत ही अच्छी बात जो ऐसे आपकी सारी ही बातों में बहुत आनंद आया सुन के, क्योंकि आपने बहुत सारे पहलू को हम सबके सामने रखने का वो कष्ट उठाया। एक विषय जो मेरे दिल को छू गया वो था कि नेशनलिज्म और देशभक्ति युवाओं के मन में होना चाहिए। और यही एक गीत मेरे मन में गुनगुनाने लगा, जिसका मैं 2 पंक्ति बस आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और ये जो गीत है, मुझे लगता है कि हम सबके लिए एक प्रेरणा का सूत्र या फाउंडेशन बन सकता है आगे कुछ भी करने के लिए। और जिस तरह देश हमें सब कुछ दे रहा है, वैसे ही युवा भी देश के लिए कुछ देने का प्रयास करें। और आपकी इस पूरे कीनोट एड्रेस में, आपके इस पूरे स्पीच में आपने इतने सारे पहलू को हम सबके सामने रखा, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो जहां पर हम सब भागीदारी के अनुसार आगे बढ़ सके, या फिर फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में जिस तरह आपने बताया, मुझे लगता है बहुत जरूरी था। पर आपके लिए विशेष करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार जनाना चाहूंगा कि जिस तरह आपने हमें भारत के बारे में, उसकी इतिहास को समझने का जो हमें एक बार पुनः आपने हमें एक बार याद दिलाया कि हमारे देश में इतने ही सारे वीर पुरुष रहे हैं, और माना जाता है कि ये सारे वीर पुरुष देश के लिए ही जिए हैं, देश के लिए ही मरे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, शिवाजी जी के, राणा प्रताप जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, और अनेक कितने हैं वीर पुरुष इस देश में जन्म लिए हैं और यहीं पर हम समक्ष हैं। उनके बारे में भी हम पढ़े, उनके बारे में भी जाने। मुझे लगता है इस जिसको आपने हमें बताया, हम सब युवाओं को ये प्रेरणा मिलेगा कि हमें आगे इस विषय पे भी जाना है। आपका एक बार फिर से धन्यवाद जनाना चाहूंगा कि जिस तरह आपने नेशनल यूथ पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन दोनों विषय को हम सबके सामने रखा, क्योंकि यूथ पॉलिसी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और ये एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत जरूरी था। देश का युवा आगे किस तरह बढ़ सकता है या देश किस तरह आगे बढ़ सकता है, वो देश की एजुकेशन, ये देश की शिक्षा के ऊपर आधारित रहती है।
और उसके बारे में भी आपने हमें शेयर किया, वो बहुत ही अच्छा हम सबके लिए रहा। और मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ठीक ही हम सबके कहा था कि एक युवा को टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू मे लीड, इफ यू लूज यू मे गाइड एंड गेट एक्सपीरियंस। और जिस तरह आपने हम सबके सामने बार बार युवाओं के लिए डायरेक्शन देने का और हमारे ऊपर ये एक जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी है पूरे युवाओं को, समस्त यूथ ऑफ इंडिया को, कि हम बेटन हैं आगे, पूरा विश्व किस तरफ डायरेक्शन जाने वाला है इस क्राइसिस ने बता दिया है। एंड इट इज राइटली सेड दैट अ क्राइसिस इज नॉट अ क्राइसिस, रादर इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव आवर वर्थ। और हमें लगता है आपकी बातें सुन के हम सब युवाओं में फिर से एक बार प्रेरणा आ गया है कि जिस तरह ये क्राइसिस चल रहा था कि हमें और इनोवेशन करना है, कुछ नया करना है और आगे बढ़ते रहना है, और आत्मनिर्भर बन के, स्वावलंबन बन के हमें आगे बढ़ते रहना है शिक्षा सशक्तिकरण के विषय में। और राष्ट्र निर्माण के लिए चरित्र निर्माण का बहुत बड़ा योगदान है, या बहुत बड़ा भूमिका है, उसे हमें पूरा अपनाना है। तो आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे सामने इस पूरे विषय को रखा। और रोल ऑफ यूथ टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग खाली 2022 तक ही नहीं, पर समस्त आगे 2030 हो, 2047 जब हम भारत 2047 में 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने वाले हैं, तब भारत किस तरफ होगा, क्या उस समय विश्व गुरु का जो हमारा स्वप्न रहा है हम वहां पर बन पाएंगे, और किस तरह युवाओं का क्या भूमिका रहने वाला है, उसके लिए आपने हमें बहुत सारे की पॉइंट्स हम सबके सामने रखा। और मुझे आपकी बात सुन के एक बार फिर से जग्गी सदगुरु जी की बात ध्यान आ गई थी, जिस तरह उन्होंने भारत के बारे में उन्होंने समझाया था कि भारत का क्या अर्थ है और किस तरह अर्थ का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है किसी की जिंदगी में। जैसे मतलब सेंसेशन आउट ऑफ इमोशन विच अराइजेस, राग जो रागा होता है, गान, ट्यून, एंड ये ट्यून हमारा नहीं है, ये ऑलरेडी सेट है विश्व में। अब खाली हमें रिदम लाना है जिसको हम ताला बोलते हैं। तो इन 3 शब्दों का ये मिश्रण किया हुआ जो ये भारता अर्थात भारत है, उसको आपने हम सबके सामने रखा। मुझे लगता है ये बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा हम सारे युवाओं के लिए जो हमें पूरे भारत से सुन रहे हैं। लगभग 218 युवा विश्व भारत के कोने कोने से सुन रहे हैं, और कुछ 4-5 देश के, श्रीलंका, यूएस के भी युवा हमें जो भारत के हैं एनआरआईज, वो भी सुन पा रहे हैं। तो गवर्नर साहब, आपका फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपकी आज्ञा हो तो 1-2 प्रश्न कुछ ऐसे आ रहे हैं, तो मैं आपसे अगर Shankar, now I request Shankar to kindly pose the vote of thanks. Yes, जी, yes, you can ask. yes. So गवर्नर सर, आपकी एक हमारे इसमें चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में एक युवा ने सिडनी से एक प्रश्न किया है। वो ये है कि सर आप पहले एक संघ के प्रचारक रहे हैं, और तो आपकी एक जर्नी किस तरह रही है, क्योंकि एक प्रचारक का जीवन, वो बोलते हैं कि मैं यहाँ देखता हूँ, वो समस्त अपने देश के लिए लगा देते हैं, और फिर उसके बाद आप राजनीति में आए और अभी आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जुड़े हुए। तो काइंडली आप अपने जर्नी के बारे में कुछ हम सबके सामने शेयर करें तो हमारा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। आपने फिर मुझे पुराने जीवन में ले जाने का आप कोशिश किया है। मैं जो है एक बहुत ऐसे प्रांत से आया हूँ, मेरा जो जन्म हुआ है वो एक ऐसी बस्ती है, वहाँ कोई पढ़े लिखे नहीं है, और वो सारा जो है वो एरिया जो है बहुत ही कोई अच्छी वातावरण नहीं रहता था। मैं उन्हीं के साथ जो है सब लोगों के साथ खेला कूदा, और उन्हीं के बच्चों के साथ मैंने ये किया। लेकिन मैंने जब मुझे एक डॉक्टर मनोहर शिंदे ने आकर मुझे मिला था,
मेरे माता जी जो है वहाँ हमारे घर के पास जो है एक छोटा सा गंज था, वहाँ पर जो है एक आनियन का जो है प्याज का जो है छोटा सा व्यापार कर लेते थे। उस समय में जो है डॉक्टर मनोहर सिंधे जी हमारे माता जी को मिले। मैं आप बताया जैसा मैं खेल कूद में ज़्यादा जाता था, मैं घर में कम रहता था। तो हमारे माता जी से मिलके उन्होंने अच्छा बातचीत किया, अच्छा समझा, कुछ तो भी बहुत एक ऐसा महीना 2 महीना उन्होंने जो है संपर्क होने के बाद हमारे माता जी मेरे पीछे पड़ी है, अरे वो मनोहर जी आ रहा है, आप उनसे मिलो। ठीक है, मैं मिलूंगा। वो जो समय पे आते मैं नहीं रहता था, लेकिन 3 महीने के बाद मैं उनको पहली बार मिला था। उन्होंने केवल मुझे पूछा है नाम क्या पढ़ते हैं, क्या है, ये सब पूछा है। ठीक है, मैंने कहा। कुछ बताया नहीं, मुझे देश के बारे में पता भी नहीं, राज्य के बारे में, देश के बारे में, ये देशभक्ति के बारे में ज़्यादा जानकार नहीं है। लेकिन उन्होंने 2-3 बार मिलने के बाद उन्होंने कहा कि एक बार हमारे शाखा में आओ। तो मैंने ठीक है बोलकर मैंने उनको बताया, गया था। वहाँ जो है अच्छा खेल कूद अच्छा करे। करने के बाद उन्होंने एक कहानी बताया, एक कहानी बताया, नेपोलियन द ग्रेट है वो स्टोरी। वो नेपोलियन द ग्रेट स्टोरी में उन्होंने ऐसा 5-10 मिनट में जो है पूरा एक फिल्म जैसा जो है सामने रखा है। वहाँ अरे नेपोलियन बोलता है, देयर इज ए नो वर्ड इन माय डिक्शनरी दैट इज इम्पॉसिबल। मेरे डिक्शनरी में जो है इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, पॉसिबल ओनली इज माय वे ऑफ लाइफ। वैसा उन्होंने जो है, इसलिए उन्हें जो है पूरा दुनिया में मशहूर बना। उनका पीछे जो अर्थ था, हम भी क्यों नहीं बने, हम भी कुछ ना बनना चाहिए, ये मेरे को जो है परिवर्तन किया है। तो उसके बाद में आपने कहा जो मैं 68 में जो है प्रचारक बना, गांव गांव घूमा, लोगों से बहुत प्यार मिला है। जब जो है मैं ज़्यादा समझाऊं, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा कि मैं राजनीति में आऊँगा, मैं राजनीति में आऊँगा ऐसा मैं नहीं सोचा। मैं संघ में ही काम करता था, लेकिन जब जेल में गया था इमरजेंसी में, जेल में जाने के बाद वहाँ बहुत से बड़े बड़े दिग्गज थे, हमारे प्रदेश के पार्टी के बहुत पार्टी के लोग थे। वो जेल में जो है हमारे साथ नक्सलाइट्स थे, सोशलिस्ट थे और संघ वाले थे, सभी लोग थे, मुसलमान भी थे, जमायत इस्लामी भी था। वो जेल के जीवन में मैंने जो सभी लोगों से जो मिला, वहाँ जो है 1 साल गुजारा, वो मेरे लिए जो है काफ़ी बहुत ही जो है जीवन में बदलाव लाई है। पढ़ना, सीखना और भिन्न भिन्न विचारों को जो है हम समझना, ये काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए जो है मैं बाहर आने के बाद फिर सेवा कार्यक्रम में गया, सेवा कार्यक्रम किया। झुग्गी झोपड़ी बस्ती में मैं पढ़ाता था, बच्चों को स्नान कराता था और बच्चों को जो है थोड़ा व्यायाम कराता था। ऐसा जो है मैं आगे बढ़ा। फिर बाद में मेरे को 80 में राजनीति में मिला। तो इसलिए मैं एक सामान्य परिवार से आकर मैं कभी सोचा भी नहीं मैं पार्लियामेंट मेंबर बनूंगा, मैं कभी सोचा भी नहीं मंत्री बनूंगा और गवर्नर बनूंगा, ऐसा कभी सोचा नहीं। तो इसलिए जो है मेरे को जो है ये लाइफ जो है नया मोड़ दिया है, वो मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। तो इसलिए मेरा जीवन जो है थोड़ा प्रचारक के रूप में गया। Very inspiring.
मुझे लगता है इतना इंस्पायरिंग स्टोरी ये आपका जर्नी रहा है गगन सर। और जिस तरह आपने शुरू किया, आपने मुझे लगता है संघ को एक बहुत ही अच्छे रूप में समझा भी दिया कि खाली खेल कूद और व्यायाम करने का ही वो एक शाखा है और उसी से शुरू होता है। और जिस तरह आपके जीवन में वो एक खाली 10 मिनट का एक कहानी ने परिवर्तन ला दिया अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट, दैट देयर इज नो वर्ड व्हिच हैड अ बेस लाइन, या उसका जो क्राइसिस है कि देयर इज नो वर्ड ऑफ इम्पॉसिबल इन माय डिक्शनरी। और हमें लगता है आपसे आपके पहले कीनोट एड्रेस में भी और इस बार वापस सुनने से एक बहुत अच्छी बात जो हम सबके सामने आया वो है दैट नो इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। नो मतलब ना नहीं होता है, ये एक नया अपॉर्चुनिटी रहता है। तो गवर्नर सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अनुभवों के साथ हम सबके साथ साझा। बस एक आखिरी प्रश्न आकर आपकी इजाजत हो लेना चाहूंगा कि गवर्नर सर, हम सब युवा अभी हो सकता है कि 20th सेंचुरी बॉर्न है, 18 साल 20 साल 25 साल तक के युवा हम सबको सुन रहे हैं। तो हमें नहीं मालूम कि 1947 कैसा था, हमें नहीं मालूम कि इमरजेंसी कैसा था, पर आपने उसको जिया है, उसमें संघर्ष भी किया है और फिर उसके आगे भी बढ़ाया है। तो कुछ ऐसे पहलू जो आप हम सब युवाओं के सामने रखे, जो हम युवाओं को आगे से प्रेरणा मिले और हम किस तरह आगे और बढ़ सके आपकी इन बातों से। इतना ही है कि बहुत लोग ये समझते हैं कि मैं गरीब हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मन में रहना चाहिए काम करना है और निरंतर करना है। और वैसे ही जो है हम निस्वार्थ भावना से करना चाहिए, निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। ये जो है अपने को प्रेरणा देती है। जो प्रेरणा, देश ये मेरा मातृभूमि है, ये देश यानी केवल मिट्टी नहीं, देश यानी जनता। जैसे विवेकानंद ने कहा था, दरिद्र नारायण देवो भव। ऐसे गरीब लोगों को, जो निस्सहाय लोगों को, वैसे लोगों की सेवा में रहना चाहिए। जितना हम सेवा में जाएंगे उतना हम जो है बहुत काम आगे बढ़ेगा। सेवा अगर नहीं रहा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन सेवा सबसे ज्यादा महत्व की है। प्रेम, सेवा और त्याग, ये तीन विषय जो है जीवन में उतरना चाहिए। सबसे प्रेम करना चाहिए, सारे एनिमल से भी प्रेम करना चाहिए, जीव जाति से भी प्रेम करना चाहिए। तो वैसा जो है हमारा जैसा रहता है, ये एक ग्लास है, एक ग्लास है, एक ग्लास में पानी कितना गिरेगा, जितना इसमें गिरेगा उतना ही है। आपका मन अगर एक ग्लास है, यही रहेगा। ऐसे नहीं है, एक तालाब है, एक तालाब में पानी बहुत ग्लास का बहुत ग्लास बनेगा। मन उतना बढ़ाना चाहिए, नदी बनना चाहिए, फिर समुद्र बनना चाहिए। वैसे जो है मन बड़ा करना चाहिए, मन बड़ा करना और सेवा भाव न रहना, आगे चलते रहना। हम सोचेंगे ज़्यादा, मैं एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा, मंत्री बनूंगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम काम करते जाना चाहिए। लेकिन भगवान है, ईश्वर है, आपको दिया तो भला, ना दिया तो भला, ऐसा समझकर चलना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से आपने हम सबके सामने इतने सारे बिंदुओं को रख दिया कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, निस्वार्थ भाव से कार्य करता रहना चाहिए। हम गरीब कोई नहीं है, हम मातृभूमि के लिए सदैव करना चाहिए। और जिस तरह आपने उस तालाब और ग्लास का एक हमें समझाया कि प्रेम, सेवा और ध्यान, इन तीनों बिंदुओं पे मुझे लगता है कि बाकी युवाओं के साथ साथ मैं भी अपने जीवन में इस शैली में लाना चाहूँगा और इसकी पे करता रहूँ। और लक्ष्य हो
पर क्या बनना है वो सारा कुछ हम भगवान पे छोड़ दें और खाली कार्य करते रहे उसके लिए। ये कंक्लूडिंग एक रिमार्क्स की तरह आपने हम सबके सामने, युवाओं के सामने जो एक इंस्पिरेशनल मैसेज रखा है गवर्नर साहब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने शंकर INS को कि एक वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करके गवर्नर सर का समय को धन्यवाद। On behalf of Vivekananda Global Foundation and Youth of India Foundation, extend our sincere gratitude to Honorable Governor Sir. So for taking time from his ongoing schedule to address the youth of India and to share his experiences and thoughts. Thanking you, sir. Last but not least, I warm greetings to all my youth friends for joining us in live session. Thank you, sir. Thank you so much. जय हिंद, नमस्ते। और एक लास्ट को हमारे माधव विशाखापट्टनम यस सर, MLC, जिसने जो है आप लोगों के मेरे बीच में जो संबंध बनाया उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम एक बार एंड करने से पहले यूथ ऑफ इंडिया और विवेकानंद ग्लोबल फाउंडेशन ने एक अनप्लास्टिक इंडिया मूवमेंट शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह को ऐलान किया था कि हमें 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना है, और लास्ट ईयर हमने अनप्लास्टिक इंडिया को यूनाइटेड नेशंस के सामने भी रखा और एक ग्लोबल अनप्लास्टिक डे का ऐलान करवाया था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सारे व्यूअर्स हमारे गवर्नर सर के साथ ये एक प्लेज लें कि हम अपने जीवन से सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाएंगे। तो आप सब मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। आई बोलने के बाद अपना नाम हम बताएंगे। आई शैलेश सिंघल pledge to incrementally reduce single-use plastic and call for a global unplastic day on September 17. Let's unplastic India. Jai Hind. Thank you so much, Governor sir. Thank you, sir.